Good morning, students. My name is Kanika, and welcome to my YouTube channel. So, today is a very exciting topic. Today, we will study about soil science. And you know very well that we are studying the topics which are really important for the competitive exams like IBPS AFO, NABARD, and all other agricultural exams like NSC, DDASO. So, all the topics are really important. So, please be focused on these subjects, and I'll try my level best to cover all the topics and all the components of the subject. So let's start the very important subject, that is soil science. So we will study from the basics. So first of all, soil जो है आपका लैटिन वर्ड है. ओके, लैटिन लैंग्वेज से इसको लिया गया है एंड इसका मतलब है सोलम. ठीक है, विच मीन्स ग्राउंड और फ्लोर. Okay, then if we talk about the father of soil science, so father of soil science या फिर modern soil, so father is VV Dokuchev. VV Dokuchev. Okay, he is the father of soil science and he is also known as the father of modern soil science in world. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में है या इंडिया में है. सो डॉक्यूचेव इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन द वर्ल्ड. If we talk about Indian father of soil science, Indian father of soil science, so he is W. Lather. W. Lather. Okay. If we talk about the modern organic farming, मैं short में लिख रही हूँ. Modern organic farming के father, so he is Sir Albert Howard. ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट सम लॉज जो कि इम्पॉर्टेंट है सॉइल साइंस में और एग्रोनॉमी में भी इम्पॉर्टेंट है वो, और मैं पिछले किसी क्लास में ये पढ़ा भी चुकी हूँ आपको वैसे तो लॉ ऑफ मिनिमम. अभी मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये होता क्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट द like who has proposed these laws. So law of minimum was proposed by Justice von Liebig. In which year? In 1840, 1840 में जस्टिस वॉन लिविंग ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था. देन इफ यू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ ऑप्टिमा एंड लिमिटिंग फैक्टर, law of optima and limiting factor, it was given by Blackman. It was given by Blackman, and in which year? In 1905. Law of minimum was given in 1840. Then after law of minimum in 1905, law of optima and limiting factor was given by Blackman. Okay, एक सेकेंड रुक जाना. हेलो. हम्म. नहीं. हम्म. हम्म. चलो ठीक है, बाय. आई एम सो सॉरी, कॉल आ गई थी एक इम्पॉर्टेंट. चलिए, लेट्स कंटिन्यू. देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. लॉ ऑफ diminishing returns, it was given by Mitscherlich. Mitscherlich in 1909. You can remember that in 1905 the law of optima and limiting factor came, which was given by Blackman in 1905, and in 1909 law of diminishing return was given by Mitscherlich. Okay, then एक आपका आता है inverse yield nitrogen, inverse yield and law, या फिर एग्रो बायोलॉजी.
लॉ इंक्रीज यील्ड, एन लॉ, ठीक है, और एग्रोबायोलॉजी इट वाज गिवन बाय विलकॉक्स in 1929. Okay, it was given by Wilcox in 1929. Then हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो we will study about the International Year of Soil, which was on 2015. And what was the theme in 2015 for International Year of Soil? It was healthy soil for healthy life. ठीक है, तो जल्दी से रिवीजन कर लेंगे. सॉइल इज अ लैटिन वर्ड, सोलम वर्ड से लिया गया है. इसका मतलब है ग्राउंड एंड फ्लोर. फादर ऑफ सॉइल साइंस एंड मॉडर्न सॉइल साइंस इज डॉक्यूचैव. बट इन द वर्ल्ड, if we talk about the Indian father of soil science, it is W. Leather. Modern organic farming के father हैं Sir Albert Howard. Law of minimum was given by Liebig in 1840. Law of optima and limiting factor was given by Blackman in 1905. Law of diminishing returns was given by Michalek in 1909. Inverse yield nitrogen law and agrobiology. It was given by Wilcox in 1929. And the International Year of Soil was 2015 and the theme was healthy soil for healthy life. Chaliye, let's move on to the next topic. Then we will study about the important books. What are the important books of soil science? देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपको. ये मत समझना कि कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है. जो पढ़ाया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो पहली आती है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. So it was given by N.C. Brady. Okay, important है. Nature and properties of soil was given by N.C. Brady. ठीक है. If we talk about the textbook of soil science, we are talking about the textbook of soil science. Textbook of soil science. So it was given by Biswas and Mukherjee. Biswas and Mukherjee. ठीक है, विश्वास एंड मुखर्जी ने आपकी दिया टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस. इससे पहले हमने पढ़ा नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाज गिवन बाय N.C. Brady. If we talk about introductory soil science, introductory soil science, it was given by D.K. Das. दास जी ने आपकी दे दी इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस वाज गिवन बाय दास. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी होगी बुक साइलेंट स्प्रिंग्स. It was given by Rachel Carson. Rachel Carson in which year? 1962. एयर उन्हीं के बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो साइलेंट स्प्रिंग वॉज गिवन बाय रेचल कार्सन इन 1962. ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन. टोटल, ये बुक का नाम नहीं है. टोटल फर्टिलाइजर ये एक इम्पॉर्टेंट वो है. कंजम्पशन, टोटल फर्टिलाइजर consumption. So it is maximum in UP. Uttar Pradesh is the state where maximum fertilizers people are using. Okay, maximally UP people are consuming the fertilizers. ठीक है, अब अगर बताया जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किया जाता है, सो इट इज़ पोटाश एंड वी कैन ऑल्सो से पोटेशियम. ओके, P2O5 बोलते हैं इसको. ठीक है, P2O5. तो पोटेशियम जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में. अब अगर बात करें इंडिया में, आपका जो NPK होता है उसका रेशो कितना है, मतलब कितना रेशो आपको यूज़ करना चाहिए. ठीक है, कितना रेकमेंडेड है. ठीक है,
और कितना यूज हो रहा है। तो एनपीके रेशियो जो रिकमेंडेड है इंडिया में दैट इज 4:2:1। 4 इज नाइट्रोजन, 2 इज P2O5 एंड 1 इज पोटाशियम। ठीक है, बट इंडिया में जो यूज हो रहा है दिस इज रिकमेंडेड। इतना रिकमेंड किया है हमको कि हमें इतना यूज करना चाहिए इस रेशो में एनपीके को। बट इंडिया में कितना यूज हो रहा है, इट इज more than required. It is 6.5 nitrogen, then ratio 2.5 potassium, sorry phosphorus and 1 potassium से यूज किया जा रहा है, लेकिन phosphorus और nitrogen जो है वो ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं as compared to the recommended dose. Okay. Now we will study the definitions which comes under the soil science. That is, आपने बहुत famous definitions पढ़ी होंगी। एक है आपका पेडोलॉजी और एक आपकी आती है इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी, ठीक है। सो पेडोलॉजी को आप बोलते हो नेचुरल बॉडी ऑफ सॉइल, नेचुरल बॉडी ऑफ सॉइल। एंड इडेफोलॉजी नेचुरल हैबिटेट ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। दिस इज द नेचुरल बॉडी। पेडोलॉजी क्या है, नेचुरल बॉडी है। And if we talk about the edaphology, it is a natural habitat of soil for plant growth. Okay, then move on to the next point. What is edaphology? So sorry, what is pedology? Pedology में आप study करते हो origin, कहाँ से origin हुआ है उस particular soil का, ठीक है। उसकी classification देखोगे, सैंड सॉइल, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, लोमी है, लेटरेटिक है, कैसी है, क्लासिफिकेशन देखोगे एंड डिस्क्रिप्शन देखोगे। तो पेडोलॉजी में आपने देख लिया ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल। अब इडेफोलॉजी में क्या रह जाता है, दिस स्टडीज द सॉइल प्रॉपर्टीज, soil properties in relation to plant growth and yield। मीन्स कि सॉइल की कैसी प्रॉपर्टीज हैं इन रिलेशन टू व्हाट, कि प्लांट की ग्रोथ और जो यील्ड है वो उन सॉइल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। दैट इज व्हाट इडेफोलॉजी इज कॉल्ड एंड इट इज अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द सॉइल कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन। कैसे बनती है आपकी सॉइल, कैसे बनेगी, कभी आपने सोचा कि सॉइल कैसे बनती है? हैव यू एवर इमेजिन्ड कि सॉइल कैसे बनती है, जिसको हजारों लाखों साल लग जाते हैं एक छोटा सा इंच बनने में, उसको कैसे वो हो रहा है, क्या प्रोसेस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं अभी। सो सॉइल कंपोजिशन, ये टॉपिक का नाम है, ओके। सॉइल कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन, बन कैसे रही है, कंपोजिशन क्या है सॉइल का, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द, सबसे पहले पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, इट इज द वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल section of soil that indicates different layers, ठीक है। वर्टिकल देखो, अगर हम आपको बताएं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सिंपल भाषा में, कई बच्चों को अभी भी नहीं पता होता है। हॉरिजॉन्टल इज दिस, if we are going like this is horizontal। तो आपकी सॉइल ऐसी है क्या, अगर आप अपने आसपास देखो, हॉरिजॉन्टली अगर देख रहे हो तो ऐसी है क्या सॉइल, ऐसे हैं लेयर्स क्या आपके सॉइल के? नहीं, ऐसे नहीं है। ये होता है आपका वर्टिकल, ये जो है दिस इज वर्टिकल। तो आपके जो सॉइल के सेक्शंस हैं, सॉइल के पार्ट्स हैं, वो जमीन के नीचे हैं। दैट मीन्स द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल विच इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट होराइजन्स।
या डिफरेंट लेयर्स। अब ये जो डिफरेंट लेयर्स की बात हो रही है, दे आर नोन एज horizons. Now we will study about the horizons which are vertically sectioned. Okay, then चलिए अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ जाता है एक होराइजन आया, ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड होराइजन, ये सेकंड होराइजन आ गया। देन आपका आता है थर्ड, फिर आपका आता है फोर्थ होराइजन। सो दिस इज ओ होराइजन, देन ए होराइजन, ठीक है, देन बी होराइजन, देन सी होराइजन। और एक आपका नीचे सबसे नीचे आता है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट वी हैव टू स्टडी दैट। तो लास्ट आपका आता है आर होराइजन, ठीक है। ओ ए बी सी एंड आर। सो ओ होराइजन क्या होता है आपका? ओ से नाम पता चल रहा है, इट इज एन ऑर्गेनिक होराइजन। ऑर्गेनिक मटेरियल होगा इसमें। ये ज्यादातर आपका पाया जाता है जो कि फॉरेस्ट सॉइल्स होती हैं, ज्यादातर वहां पे ओ होराइजन होता है। दिस इज द अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देती है, दैट इज द अपर मोस्ट होराइजन, बट वेयर इन फॉरेस्ट्स। ओके, ये आ गया आपका ओ होराइजन। अब पढ़ेंगे ए होराइजन। ए होराइजन क्या होता है? ए होराइजन होता है आपका एलुवियल, एलुवियल, आपने एक सॉइल भी पढ़ी होगी, एलुवियल सॉइल, है ना। सो ए होराइजन इज ए से एलुवियल, ठीक है। और इसको सरफेस होराइजन भी बोलते हैं, किसका? कल्टीवेटेड सॉइल का। जो आप सॉइल को कल्टीवेट करते हो ना, ठीक है, वो वाली जो लेयर होती है वो होती है ए होराइजन, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका होता है एलुविएशन प्रोसेस, ठीक है। मैं ए थोड़ा सा, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखो होता है एलुविएशन प्रोसेस। एलुविएशन प्रोसेस, अब एलुविएशन क्या होता है? वॉशिंग आउट। वॉशिंग आउट, वॉशिंग आउट मीन्स मैक्सिमम लीचिंग जो है वो इसी फेज में होती है। अब लीचिंग क्या होता है, हम वैसे बाद में पढ़ने वाले हैं ये सब टॉपिक। तो लीचिंग क्या होता है? लीचिंग होता है कि पानी के साथ आपके जब न्यूट्रिएंट्स भी सॉइल से, सॉइल के अपर लेयर से बहते जा रहे हैं, सॉइल में नहीं बच रहे हैं वो न्यूट्रिएंट्स, दैट इज व्हाट लीचिंग इज कॉल्ड। मैं लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बस सिंपल। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए, दैट इज व्हाट माय वर्क इज। सो एलुविएशन आपका होता है ए होराइजन में, क्योंकि देखो कल्टीवेशन आपकी हो रही है ए होराइजन में, ठीक है। कल्टीवेटेड सॉइल आपका ए होराइजन आ गया, ठीक है। उसी में आप न्यूट्रिएंट्स डालते हो, उसी में फर्टिलाइजर डालते हो, और उसी में आप पानी देते हो। तो जब आप पानी देते हो या बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से जो आपने न्यूट्रिएंट्स डाले होते हैं वो लीच आउट हो जाते हैं, नीचे की तरफ को बह जाते हैं। जहां पे आपने डाले हैं वहां से, वहां पे नहीं रहते, वहां से पानी के साथ बह जाते हैं। दैट इज व्हाट लीचिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ से बह रहे हैं, दैट मीन्स वॉश आउट हो रहे हैं, वॉशिंग आउट हो रही है। अब वॉशिंग आउट के प्रोसेस को बोलते हैं एलुविएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, मैं कोई और कलर चूज कर लेती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बी होराइजन। अब बी होराइजन क्या होता है? इसको बोलते हैं इलूवियल। अब देखो एलुवियल और इलूवियल दोनों में डिफरेंस है। बी से आप याद रख लो बिल्लू, ठीक है। तो बिल्लू मीन्स बी होराइजन एंड इल्लू मीन्स इलूवियल, ठीक है। या फिर इसको इलुविएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलुविएशन प्रोसेस। और इसको बोलते हैं वॉशिंग इन। वॉशिंग इन का मतलब क्या है? इसमें एक्यूमुलेशन होती है, इकट्ठे हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं, ठीक है। और ये है आपका सब सरफेस होराइजन। जो आपका सबसे ऊपर आया वो आ गया आपका फॉरेस्ट सॉइल वाला ओ होराइजन, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, ज्यादातर फॉरेस्ट एरियाज में होता है ये। देन आ गया ए होराइजन, जिसमें इलुविएशन सॉरी एलुविएशन हो रही थी, मतलब वॉशिंग आउट हो रहा था, मैक्सिमम लीचिंग इसी होराइजन में होती है। देन आ गया आपका बी होराइजन, जिसमें इलुविएशन प्रोसेस होता है। इलुविएशन मीन्स एक्यूमुलेशन हो जाना सारे न्यूट्रिएंट्स का, एसके ऑक्साइड्स का, सब कुछ। तो वो सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाना, ठीक है। तो वो आपका वॉशिंग इन हो गया। और जो आपका ए था वो था सरफेस होराइजन, और जो बी है वो है सब सरफेस होराइजन। देन आ गया आपका सी होराइजन।
तो सी होराइजन को बोलते हैं पेरेंट होराइजन। अब पेरेंट होराइजन क्या हो गया? इसमें ज्यादातर अनकंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड, एक सेकेंड रुकना, अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर्स होते हैं। क्या होता है? अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर्स। अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर्स क्या होते हैं? एक सेकेंड। अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर। सी क्या आ गया? पेरेंट होराइजन, पेरेंट मटेरियल होगा इसमें। अब अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर्स होते हैं इसमें। अब ये क्या होता है? अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर्स क्या होते हैं? जब आप देखते हो ना रेत, मिट्टी में आपकी जब रेत होती है, बजरी होती है, ठीक है, सिल्ट वाली मिट्टी होएगी, क्ले होएगी, तो ये जो मतलब बिल्कुल लूज लूज पड़ी होती है, दैट इज व्हाट अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर इज। ठीक है, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, तो ये सब आपके यहाँ आ गए। मतलब मिनरल मैटर जब लूजली पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब ये कोई बहुत ही सॉलिड मटेरियल की तरह नहीं पाए जाते, ये लूजली जब पाए जाते हैं, दैट इज व्हाट अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर इज नॉन, एंड दिस कम्स अंडर द सी होराइजन। इसके बाद हमने पढ़ा आर होराइजन। आर होराइजन में आते हैं आपकी बेड रॉक्स। बेड रॉक्स मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें, ठीक है, तो ये आ गया आपका आर होराइजन। अच्छा, एक आपका, आपने कभी पढ़ा होगा, एक आपका ई होराइजन भी होता है, ठीक है, ई होराइजन भी होता है एक। तो ई होराइजन को आप ए टू होराइजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये पार्ट है ए होराइजन का, पार्ट ऑफ ए होराइजन, जहां पे ज्यादातर वॉशिंग आउट हो रहा था, उसी का पार्ट है ये ई होराइजन जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला मैंने बताया था मैक्सिमम लीचिंग आपकी हो रही है ए में। अब ए के भी जो ई होराइजन है, ए टू होराइजन है, उसमें मैक्सिमम लीचिंग होती है, ठीक है, मैक्सिमम लीचिंग, ठीक है। तो ये आपका आ गया सॉइल प्रोफाइल, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए ये है क्या, कौन सी बीमारी है, तो ये सब आपको देख के रखना है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम आगे। अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी थी। एक होता है आपका जो हमने पढ़ा, अब देखो सबसे ऊपर ही पढ़ लिया था कि सॉइल का मतलब होता है सोलम, ठीक है। तो सोलम जो बनता है ना, दैट इज मेड बाय होराइजन ए एंड होराइजन बी, दोनों को मिला के आपका बनेगा सोलम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इन्होंने बताया है यहाँ पे एलुविएशन और इलुविएशन के बारे में, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया, देखो एलुविएशन होता है कि लीचिंग होती है जहाँ पे मैक्सिमम, ये सब बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा, रेड कलर ले रही हूँ मैं। देखो यहाँ पे हुई आपकी लीचिंग, मीन्स ये सॉइल थी, ठीक है, यहाँ पे आपके आ गए थे जैसे सिलिकेट, क्ले आ गई, ठीक है, आयरन आ गया, ऑक्साइड्स, आयरन के ऑक्साइड्स आ गए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स आ गए, सॉल्ट्स आ गए, कार्बोनेट्स आ गए, ये सब यहाँ से लीच आउट हुए, और लीच आउट हो गए कौन से होराइजन में आ गए? बी होराइजन में। अब यहाँ से लीच, ए होराइजन से लीच आउट हो रहे हैं, दैट मीन्स एलुविएशन हो रही है, वॉशिंग आउट हो रहे हैं। अब यहाँ से लीच होके कहीं तो जाएंगे, तो कहीं जाएंगे मीन्स बी होराइजन में जाएंगे, तो यहाँ पे आ रहे हैं, ए से जा रहे हैं और बी में आ रहे हैं। जब बी में आ रहे हैं, दैट इज नोन एज इलुविएशन, ठीक है। बस सिंपल सा आपको ये याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने सोलम पढ़ लिया, सोलम के बाद एक टर्म आती है रेगोलिथ, ठीक है। रेगोलिथ कैसे बनती है? ए प्लस बी प्लस सी होराइजन से। अब ये क्या है? रेगोलिथ क्या है? लूज रॉक्स होते हैं, लूज रॉक्स lying on
बेड रॉक्स। बेड रॉक्स कौन से पढ़े थे? आर वाला होराइजन जो था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं। अब मैंने सरफेस सॉइल भी बता दी कौन सी होती है, आपको सब सरफेस सॉइल भी बता दिया क्या होता है। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं अब कुछ एक टॉपिक, जैसे कि वेदरिंग। हमने पढ़ा कि वेदरिंग होती है रॉक्स की तो सॉइल बनता है। वेदरिंग क्या होती है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स into unconsolidated material lying on earth surface, lying on earth surface। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें जब टूटती हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल में, एक लूज मटेरियल में। ठीक है, एक जो बड़ी चट्टान होगी ना, देखो बड़ी चट्टान ऐसे होगी, ये एक चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, इसे चिपकी हुई है बिल्कुल, और ये क्या है, बहुत हार्ड है आपस में। तो इनकी ये जब ट्रांसफॉर्म हो रही है या फिर इनमें जब ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, तो ये लूज मटेरियल में बन जा रही है, मीन्स मान लो ऐसे ऐसे बन जा रही है ये लूज मटेरियल में। सो दिस इज व्हाट वेदरिंग इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये वेदरिंग है जब बड़ी बड़ी चट्टानें आपकी जो है वो एक ऐसे मटेरियल में बन जा रही हैं जो कि लूज है, दैट मीन्स अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। ये जो वेदरिंग है ना, दिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस। इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फिजिको केमिकल मीन्स एक तो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एक हो रहा है केमिकल रिएक्शन। अब जो फिजिकल रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हो डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलोगे? डिसइंटीग्रेशन। और जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको बोलोगे डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज हो रहा है, डीकम्पोजिशन। ठीक है, सो वेदरिंग इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर्स के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। कंपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर्स, मिनरल सॉइल सॉरी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखो एक तो आपका सॉइल में सॉलिड स्पेस होएगा, एक आपका सॉइल में होता है पोर स्पेस। पोर स्पेस मान सकते हैं छिद्र, छेद जो होते हैं सॉइल में, दैट इज व्हाट पोर स्पेस इज कॉल्ड। तो आपका सॉलिड स्पेस भी कितना है, 50% है, और पोर स्पेस भी कितना है, 50% है। अब जो सॉलिड स्पेस है, मतलब सॉलिड मटेरियल जो सॉइल में होता है, उसमें क्या क्या आता है? एक तो आपका आता है ऑर्गेनिक मैटर। देखा जाए ना कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि सॉइल होती कैसी है, क्या क्या होता है उस सॉइल में। पोर स्पेस होता है, सॉलिड स्पेस होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर कितना है आपका? ओनली 5%। आपकी सॉइल में 5% ही ऑर्गेनिक मैटर होता है। एक आपका आ जाता है मिनरल मैटर। ठीक है, मिनरल मैटर कितना है? 45%। मिनरल मैटर ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है सॉइल में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे जो आपका पोर स्पेस है। अब पोर स्पेस इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, ये दो ही तरह का होता है, एक होता है एयर, एक होता है वाटर। तो इसमें दोनों ही 50% है पोर स्पेस, तो 25% आपका एयर आ गया, 25% आपका वाटर आ गया। जो एयर वाले पोर्स होते हैं वो होते हैं मैक्रोपोर्स, और जो वाटर वाले होते हैं वो होते हैं माइक्रोपोर्स। ठीक है, देन अब आपका आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल्स।
मिनरल मैटर जो है दैट इज फर्दर डिफाइंड इनटू दैट इज प्राइमरी मिनरल्स। इसमें जो डोमिनेट करती है वो है सैंडी सॉइल, ठीक है। एक आ जाता है आपके सेकेंडरी मिनरल्स। तो सेकेंडरी मिनरल्स में जो डोमिनेट करती है दैट इज क्ले सॉइल, ठीक है। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सैंडी सॉइल में कौन है, प्राइमरी मिनरल्स, एंड क्ले सॉइल के आते हैं आपके ये सेकेंडरी मिनरल्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो मैं अलग से आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए। हम्म, अब हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि इसी के अंडर आता है फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार, अब फेल्ड्स्पार डिफरेंट तरीके के हैं, तीन है। एक वो फेल्ड्स्पार जिसमें सोडियम होता है, सोडियम फेल्ड्स्पार, ठीक है। एक है पोटेशियम फेल्ड्स्पार, एक है कैल्शियम फेल्ड्स्पार। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अब जो सोडियम वाला फेल्ड्स्पार है उसको बोलते हैं एल्बाइट। क्या बोलते हैं, एल्बाइट। जो पोटेशियम वाला है उसको बोलेंगे ऑर्थोक्लेज, और जो कैल्शियम वाला है उसको बोलेंगे एनॉर्थाइट। याद करना है इनको, इंपॉर्टेंट है, एल्बाइट, ऑर्थोक्लेज, एनॉर्थाइट, ठीक है। देन इसके बाद आपका आता है एक फेल्ड्स्पार के बाद क्वार्ट्ज। इसका फॉर्मूला है SiO2। फिर आता है आपका माइका। अब माइका भी दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैक माइका, एक होता है वाइट माइका, ठीक है। एक होता है ब्लैक, एक होता है वाइट। अब जो ब्लैक वाला है उसका नाम भी ब्लैक बी से ही है, दैट इज बायोटाइट। और जो वाइट वाला है वो होता है मस्को वाइट, मस्को वाइट, ठीक है। इसके बाद आपके जो सेकेंडरी मिनरल्स आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे सारे जो थे ना, ये सारे प्राइमरी हैं, ये सारे प्राइमरी हैं, ठीक है। ये सारे प्राइमरी हैं। अलग कलर से लिखूंगी सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में। तो सेकेंडरी मिनरल में आपके आ जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गिब्साइट। फिर आपका आ जाते हैं आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, आयरन। इसके अलावा इसमें आता है लिमोनाइट, ठीक है, जियोथाइट, हेमेटाइट, ठीक है, एपेटाइट, जिप्सम, डोलोमाइट। ये सब आपने पढ़े होंगे, ऐसे इसके अंदर नहीं पढ़े होंगे, ये सेकेंडरी मिनरल्स हैं सारे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, लिमोनाइट, जियोथाइट, हेमेटाइट, एपेटाइट, जिप्सम और डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला याद रख लेना, CaMgCO3 ट्वाइस, CaMgCO3 ट्वाइस, ठीक है। देन इसी के अंडर जो आपके सेकेंडरी मिनरल्स हैं, इसी के अंडर एक आते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले मिनरल्स, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके जो आगे फर्दर है ना वो इम्पोर्टेंट है, जो कि पांच है। एक है क्योलेनाइट, क्योलेनाइट, देन मॉन्ट मोरिलोनाइट, देन वर्मिक्यूलाइट, देन इलाइट एंड देन फ्लोराइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलोनाइट क्या होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट क्या होता है, वर्मिकुलाइट क्या होता है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो इस सब में आपका आ गया, ये आ गया आपके सेकेंडरी मिनरल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको एक बारी अच्छे से देखना कि प्राइमरी में कौन से आए आपके, सेकेंडरी में कौन से आए आपके। पोर स्पेस तो दो ही हैं, ठीक है, एयर जो कि 25% है और वाटर जो कि 25% है। एयर वाले मैक्रो हैं और वाटर वाले माइक्रो हैं। चलिए, अच्छा अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स
which are resistant to weathering. मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल, रेजिस्टेंट मिनरल कौन सा है वेदरिंग के लिए? अब रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि उसमें आसानी से नहीं हो पाती है वेदरिंग, तो वो है क्वार्ट्स. इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल टू वेदरिंग. इसके बाद आपका आता है मस्कोवाइट. सो मस्कोवाइट इज नोन एज वाइट माइका. ठीक है, फिर आ गया आपका फेल्डस्पार. फेल्डस्पार हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम का. सोडियम वाला था अल्बाइट, पोटाशियम वाला था ऑर्थोक्लेज एंड कैल्शियम वाला था अनॉर्थाइट. ठीक है, तो ये आ गया आपका फेल्डस्पार. देन आता है आपका बायोटाइट. तो बायोटाइट इज ब्लैक माइका. देन आपका आ गया डोलोमाइट, जो कि सेकेंडरी मिनरल है. तो सबसे पहले आ गया क्वार्ट्स, QMFBD. QMFBD क्वार्ट्स, मस्कोबाइट, फेल्डस्पार, बायोटाइट, डोलोमाइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रॉक्स के बारे में. डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं. रॉक्स, इसी से कहानी शुरू होती है आपकी. तो पहले आ जाते हैं आपके इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं? जो आपका लावा नहीं होता, मोल्टन मैग्मा जिसको बोलते हो, मैग्मा लावा जो होता है, ठीक है, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक्स बनते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा. ठीक है, जब वो सॉलिड हो जाएगा दैट इज इग्नियस रॉक. ठीक है, इसके बाद आपका इग्नियस रॉक जो है ना वो डिफरेंट, इसके अंडर दो आते हैं इग्नियस रॉक में. एक आता है आपका इंट्रूसिव और एक आता है एक्सट्रूसिव. तो जो इंट्रूसिव है उसको आप प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हो. इंट्रूसिव क्या हुआ? प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटो से याद रख लो. और एक्सट्रूसिव को आप वॉल्केनिक रॉक्स बोलते हो, वॉल्केनिक. ठीक है, याद रहेगा. अब डिफरेंस क्या है? देखो, इंट्रूसिव का मतलब कि जो सॉलिडिफिकेशन हो रही है आपकी, इसमें भी सॉलिडिफाई होता है वो, तो जो सॉलिडिफिकेशन हो रही है वो हो रही है मॉडरेट डेप्थ ऑफ सॉइल पे, मॉडरेट डेप्थ ऑफ सॉइल पे. मतलब सरफेस पे नहीं हो रही है, एक मॉडरेट डेप्थ पे हो रही है सॉइल की सॉलिडिफिकेशन, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक्स. और एक्सट्रूसिव होती है जब सॉलिडिफाई हो रहा है मटेरियल इन, सॉलिडिफाई ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. जब अर्थ के सरफेस पे सॉलिडिफिकेशन हो रही है दैट इज नोन एज एक्सट्रूसिव. एक्सट्रूसिव मीन्स एक्सटीरियर, बाहर. बाहर मीन्स अपर लेयर. ठीक है, बाहर. और इंट्रूसिव मीन्स थोड़ा सा अंदर, मीन्स एट मॉडरेट डेप्थ ऑफ सॉइल. तो अब जो इंट्रूसिव है उसका एग्जाम्पल आपका आ जाता है ग्रेनाइट. ये इंपॉर्टेंट है. तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है. इग्नियस रॉक्स में भी अगर फर्दर पूछा जाए तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स या फिर इंट्रूसिव रॉक्स. ग्रेनाइट जो होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर. कैसा होता है? एसिडिक, एसिडिक इन नेचर. और इसमें 65 to 75% सिलिकन होता है. ठीक है, एसिडिक में सिलिकन होता है, याद रखना. देन आपका जो एक्सट्रूसिव है उसका एग्जाम्पल आता है आपका बसाल्ट. बसाल्ट इज बेसिक, बेसिक रॉक, बेसिक इन नेचर. इट कंटेन्स 40 to 55% सिलिकन. मीन्स जो एसिडिक, अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा, जो एसिडिक सॉइल होगी उसमें सिलिकन कंटेंट ज़्यादा होगा, जो बेसिक सॉइल होगी उसमें आपका जो सिलिकन कंटेंट होगा वो थोड़ा कम होगा. बसाल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स एंड granite is an example of intrusive and plutonic rocks, and both comes under the igneous rocks. Granite and basalt both are the examples of igneous rocks. Okay, इसके बाद आपका आता है सेकेंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री
रॉक्स। ये आपका फर्स्ट आ गया, ये आपका सेकंड है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? अब जो इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग हुई थी वो दोबारा से जब रीसीमेंटेशन होगी उनकी दोबारा से बनेंगे, फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन। डिपोजिशन मींस दोबारा से बनेंगे। जो इग्नियस रॉक में वेदरिंग हो गई, ठीक है, वहां पे बोला था कि मोल्टन मैग्मा की सॉलिडिफिकेशन की वजह से आपके इग्नियस रॉक्स बन रहे हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कब बनेंगे? जब दोबारा से रीसीमेंटेशन होएगी किसकी? वेदर्ड। अब इग्नियस रॉक्स जो वेदर्ड हुए थे, जिनमें वेदरिंग हुई थी, उनकी दोबारा से रीसीमेंटेशन होगी तो आपके बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू deposition and re-cementation of weathered igneous rocks। ठीक है, ये हो गया आपके सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं आपके शेल, ठीक है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। जब कभी आप कोई अपने घर के लिए पत्थर लगाने के लिए जाओगे, आपको दीवारों पे पत्थर लगाना है, आपको नीचे पत्थर लगाना है, या ठीक है, या फिर कोई आपको टाइल लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो वो सब चीज़ें हैं ये शेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। जब कभी आप किसी शॉप पे जाओगे ना, तो वो आपको ऐसे ऐसे नाम बताएंगे, ये सैंडस्टोन का है, दिस इज अ पर्ल सैंडस्टोन, दिस इज रेड सैंडस्टोन, ऐसे ऐसे वो बताएंगे। ठीक है, वहां पे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये तो टाइलें होती हैं, ये तो पत्थर होते हैं। कई बच्चों को यही नहीं पता होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका कोल। कोल भी एग्जाम्पल आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का है। ठीक है, देन हम पढ़ने वाले हैं थर्ड टॉपिक। थर्ड जो टाइप है रॉक्स की, वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब ये क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द changes in sedimentary and igneous rocks। जब आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, या तो सेडिमेंट्री रॉक में या इग्नियस रॉक में कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो आपके बन जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब जो टाइलें आपको दुकान में मिलती हैं वो वैसी की वैसी पहाड़ों से वैसी की वैसी नहीं आती हैं, वो बनी बनाई। ठीक है, पहाड़ों से तो सिर्फ पत्थर ही मिलते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, अब उन चट्टानों में जब आप चेंजेस कर रहे हो, उन पत्थरों में जब आप चेंजेस कर रहे हो, उसको बिल्कुल प्लेन कर रहे हो, रिफ्रेश तरीके से एक प्लेन उसको मार्बल जैसा सरफेस दे रहे हो, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो, मेटामॉर्फिक का मतलब ही मेटामॉर्फोसिस है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस आपने एंटोमोलॉजी में पढ़ी होगी, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही चेंज होता है। जब आप किसी चीज को अ सडन चेंज, दैट इज नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। तो जब आप दोनों रॉक्स में चेंज कर रहे हो तो आपका बन रहा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मीन्स अगर बात करें, कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे मैं लिखती हूँ बेसिक रॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख रही हूँ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब किससे क्या बनाया जाता है। अब जैसे मान लो आपका सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन है, तो उससे आपका बनाया जाता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट। अब मैं ये पढ़ रहे हो ना आप, यहाँ पे साथ साथ में पिक्चर्स भी देखते जाओ, आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सैंडस्टोन से क्या बन रहा है? क्वार्टजाइट। देन इफ यू टॉक अबाउट द लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन से आपका जो मार्बल आता है ना, वो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है एक्चुअल में, लेकिन जब उसमें आप चेंजेस करते हो तो वो मार्बल बन जाता है। If we talk about the peat, peat के बारे में आपने पढ़ा होगा, the partially decomposed material is known as peat। ठीक है, तो peat से आपका बनता है कोल, कोयला। देन बसाल्ट हमने पढ़ा अभी, बसाल्ट इज द बेसिक रॉक which comes under the extrusive or volcanic rock which comes under igneous rocks। तो बसाल्ट से आपका बनता है सिस्ट,
सिस्ट दूसरा सिस्ट मत समझ लेना, नेमाटोलॉजी वाला, it is cyst. Then we talk about the granite. Granite was the acidic rock which comes under the intrusive or plutonic rocks, and that comes under the igneous rocks. तो ग्रेनाइट से बनता है नीज, ओके, ग्नीज मत पढ़ना है इसको, इट इज नीज, GNEISS, ओके। तो ये आपके आ गए मेटामॉर्फिक रॉक्स। चलिए, सॉइल साइंस एक लंबा सब्जेक्ट है वैसे, मैंने वादा तो कर दिया है कि 3 क्लासेस में कवर कर देंगे, बट आई डोंट नो ये हो पाएगा या नहीं। चलिए, अब सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है? सॉइल फॉर्मेशन मैंने बता दिया, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स होता है तो सॉइल बनती है। अब देखो 1 इंच अगर आपने सॉइल बनानी है तो उसके लिए लगभग लगभग 200 से 1000 साल लग जाते हैं, 1 इंच सॉइल के लिए, सिर्फ 1 इंच सॉइल के लिए। और कैसे होती है सॉइल फॉर्मेशन? वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स से। ठीक है, चलिए आगे एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि सॉइल के फॉर्मेशन के फैक्टर्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने दिए थे। तो अकॉर्डिंग टू जोफी देखें, अकॉर्डिंग टू जोफी, जोफी ने बोला था, इसने 2 तरह के सॉइल फॉर्मर्स देखे थे। एक देखा था इसने एक्टिव, एक सेकेंड रुक जाइए, एक देखा था इसने पैसिव, एक देखा था इसने एक्टिव फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब जॉफी ने बोला कि 2 तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होती है, दैट इज एक्टिव फैक्टर्स की वजह से और एक होती है पैसिव फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो पैसिव फैक्टर्स में आपके उसने जो दिया वो था पेरेंट मटेरियल, एक पेरेंट मटेरियल दिया था। ठीक है, फिर उसने दिया था साथ में टोपोग्राफी, हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी टोपोग्राफी, और देन टाइम या फिर एज ऑफ लैंड। ठीक है, ये आ गया आपके पैसिव फैक्टर्स। उसने बोला कि पैसिव फैक्टर्स और एक्टिव फैक्टर्स की वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। अब पैसिव फैक्टर्स में क्या क्या आ गया आपका? पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, एज कितनी है लैंड की, टाइम कितना हुआ है, ये सब देख के सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। और एक्टिव फैक्टर्स की वजह से क्या कैसे बन रही है? उसमें 2 फैक्टर्स आए, एक आ गया क्लाइमेट और एक आ गया ऑर्गेनिजम्स, जो आसपास के ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको बायोस्फीयर भी बोलते हैं। तो जॉफी ने बोला कि एक्टिव फैक्टर्स दैट आर क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिजम्स की वजह से सॉइल फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू एच जेनी, दोनों का नाम जे जे से है। फर्स्ट वॉज जोफी जिसने एक्टिव पैसिव फैक्टर्स दिए, सेकेंड इज एच जेनी। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी, दैट इज एस इज इक्वल टू एफ सी एल ओ आर पी टी, एफ क्लॉप्ड, याद रख लो क्लॉप्ड। ठीक है, सो एस वॉज सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। इसने बोला कि सॉइल के फॉर्म जो फॉर्मेशन हो रही है उसके फैक्टर्स ये हैं। तो एफ क्या था? एक तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वेरी करता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पता होगा। ठीक है, सी एल इज क्लाइमेट, ओ इज ऑर्गेनिजम्स, आर इज रिलीफ या इसको टॉपोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, पी इज पेरेंट मटेरियल एंड टी इज टाइम। देखो है वही चीजें जो एक्टिव पैसिव फैक्टर्स में थी, उसमें भी क्लाइमेट ऑर्गेनिज्म एक्टिव फैक्टर्स में आ रहे थे, रिलीफ टॉपोग्राफी पेरेंट मटेरियल और टाइम आपका जो था वो आ रहा था आपका पैसिव फैक्टर्स में। है वही फैक्टर्स, लेकिन इन्होंने एक इक्वेशन दे दी थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने पढ़ ली जो एच जेनी और जोफी ने दिए हैं सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स। चलिए अब पढ़ेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसमें आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ से बहुत वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, अभी तक जो पढ़ा सब इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बस ऐसे समझ लेना। तो पहले आ जाता है आपका सॉइल टेक्सचर।
एक पढ़ेंगे सॉइल टेक्सचर और एक आता है आपका सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉइल टेक्सचर और एक आ जाएगा आपका, यहीं पे लिख देती हूँ यार, है ना, सॉइल स्ट्रक्चर। राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी शायद, वैसे तो अच्छी है, सब लोग तारीफ ही करते थे, बट इसमें अच्छी नहीं आती। ठीक है, सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो देखो टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर, सबसे पहले तो एक चीज याद रख लेना, टेक्सचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चेंज नहीं हो सकती कभी भी। जो सॉइल का टेक्सचर है वो वैसा का वैसा ही रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज सॉइल टेक्सचर? इट इज द रिलेटिव proportion of sand, silt and clay। मतलब जो सैंड सिल्ट क्ले है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सैंड है तो वो सैंड ही रहेगी, ठीक है, सिल्ट है सिल्ट ही रहेगी, क्ले है क्ले ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन सॉइल। सॉइल में कितना सैंड है, कितना सिल्ट है, कितना क्ले है, दिस इज व्हाट सॉइल टेक्सचर इज कॉल्ड। इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय टिलेज, इट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय टिलेज। आप चाहे टिलेज कर लो, कुछ भी कर लो, आप टेक्सचर को चेंज नहीं कर पाओगे सॉइल के। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट, अगर हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्केल, जिसको बोलते हैं ISSS, उसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसमें डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स आते हैं। जैसे कि फर्स्ट आ गया आपका ग्रेवल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ग्रेवल आता है आपका, देन आपका आता है कोर्स सैंड, देन आपकी आती है फाइन सैंड, देन आपकी आएगी सिल्ट, और फिर आपका आएगा क्ले। तो इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो पढ़ेंगे कि कितना कितना होता है। तो ग्रेवल में इट इज मोर देन 2 mm। देन इफ यू टॉक अबाउट द कोर्स सैंड, सो इट इज 0.2 to 2 mm। Then if you talk about the fine sand, it is 0.02 to 0.2 mm. Then in silt, it is 0.002 to 0.02 mm. And if we talk about the clay, it is less than 0.002 mm. So this is the classification and the different particle sizes for different soil particles, which comes under the soil texture। इसमें तीन आपने इंपॉर्टेंट पढ़ ली, देखो सैंड सिल्ट क्ले। ठीक है, अब जो सैंड आप पढ़ते हो, देखो जब आप सैंडी सॉइल पढ़ते हो ना, सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल मीन्स मोर देन 70% सैंड। सैंडी सॉइल मीन्स सैंड ज़्यादा होगी, 70% से ज़्यादा इसमें सैंड ही है। ठीक है, और लेस देन 15% इसमें क्ले होती है, 15% से कम इसमें क्या है, क्ले। इफ यू टॉक अबाउट द सिल्टी क्ले, सिल्टी सॉइल, तो सिल्टी सॉइल में 80%, एटलीस्ट 80% सिल्ट होती है, एंड 12% या फिर इससे कम क्ले होती है। अब देखो सैंडी सॉइल में सिल्ट नहीं है, सैंड और क्ले है, सिल्टी में सिल्ट और क्ले है। देन क्ले सॉइल की बात करेंगे, तो क्ले सॉइल में एटलीस्ट एटलीस्ट की बात कर रही हूँ, एटलीस्ट कम से कम 35% क्ले होनी ही चाहिए, तब वो क्लेई सॉइल कहलाएगी। ठीक है, देन कुछ अलग से आती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा हैवी सॉइल, लाइट सॉइल, लोमी सॉइल। अब लोमी सॉइल क्या होती है? लोमी सॉइल क्या होती है? जिसमें सैंड सिल्ट क्ले का रेशो होता है 40-40-20, मीन्स 40% आपकी सैंड होएगी, 40% आपकी सिल्ट होएगी, ठीक है, और 20% आपकी क्ले होगी। ठीक है, ठीक है, इक्वल एग्जिबिट इक्वल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें इक्वल प्रॉपर्टीज हैं, मीन सैंड सिल्ट क्ले इक्वली हैं, बट वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है, क्वांटिटी इक्वल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं सैंड सिल्ट क्ले तीनों की, बट इक्वल क्वांटिटी में नहीं है।
अगर सॉइल टेक्सचर क्लासेस, जितनी भी सॉइल टेक्सचर की क्लासेस हैं यहाँ पे हमने पढ़ी, ठीक है, उनमें अगर बेस्ट सॉइल देखें तो वो है लोमी सॉइल, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए बेस्ट सॉइल आपकी लोमी सॉइल होती है, ना तो सैंड, ना तो सिल्ट, ना तो क्ले। लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। देन आपने पढ़ी होगी हैवी सॉइल। जब भी हैवी नाम आ जाएगा याद रख लेना क्ले सॉइल, ठीक है। क्ले सॉइल कैसी होती है देखो, कैसे बताऊँ। जब मान लो आपका कहीं, आप कहीं कहीं पे काम चल रहा होता है, जेसीबी वगैरह चल रही होती है, और वहाँ की मिट्टी ना बिल्कुल दलदली, बिल्कुल पानी से भरी मिट्टी हुई हो जाती है, बिल्कुल चिपकी हुई सी। मीन्स आप उसको ऐसे अगर उठाओगे हाथ में ना तो वो ऐसे छूट नहीं पाएगी, ठीक है, वो ऐसे ही उठ जाती है बिल्कुल केक की तरह, ठीक है। उसमें उतना ही मॉइस्चर होगा, उतना ज्यादा पानी होगा, तो वो आपकी होती है क्ले सॉइल, ठीक है। तो ये जो क्ले सॉइल है ना, इसी को हैवी सॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, क्ले सॉइल इम्पार्ट्स कोहेशन। कोहेशन होता है जोड़ के रखना, कोहेशन एंड स्टिकीनेस। जिस सॉइल में कोहेशन है, स्टिकीनेस है, ठीक है, और टेक्सचर उसका फाइन है। फाइन टेक्सचर्ड सॉइल भी क्ले सॉइल ही होती है। फाइन टेक्सचर्ड सॉइल जो होगी वो भी क्ले सॉइल ही होती है। तो ये तीनों चीजें जिसमें होगी वो आ गई आपकी क्ले सॉइल और हैवी सॉइल। इसके बाद एक आती है आपकी लाइट सॉइल। तो लाइट सॉइल क्या होगी? जो आपकी सैंडी सॉइल होगी वो लाइट सॉइल होगी, लाइट सॉइल होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लिटिल रेजिस्टेंस देती है इम्प्लीमेंट्स के लिए। लिटिल, आपने ये पढ़ा होगा लिटिल रेजिस्टेंस, और आपको मतलब नहीं पता होगा। लिटिल रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। मान लीजिए आपने एक फावड़ा लिया है, ठीक है। मान लो आपके पास दो फावड़े हैं, एक आप क्ले सॉइल में मार रहे हो और एक आप सैंडी सॉइल में मार रहे हो, ठीक है। जो क्ले सॉइल में मारोगे ना तो आपको दिक्कत होएगी, क्योंकि वो फंस जाएगा। एक तो पहले अंदर जाएगा ही नहीं, जाएगा तो फंस जाएगा। सैंडी सॉइल में जब आप फाड़ा मारोगे तो वो एकदम से अंदर चला जाएगा और वो बाहर भी एकदम से निकल आएगा, इसीलिए उसको लाइट सॉइल बोलते हैं। और जो क्ले है वो हैवी सॉइल है। तो इट प्रोवाइड्स लिटिल रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट्स एंड इट इज हैवी सॉइल प्रोवाइड्स मोर रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो ज्यादातर हैवी और लाइट का मतलब है ही रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कि इम्प्लीमेंट्स के लिए कितनी रेजिस्टेंस है। तो हैवी सॉइल में ज़्यादा रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करता है, और लाइट सॉइल जो है वो आपकी सैंडी सॉइल, उसमें इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस वो इम्प्लीमेंट्स को नहीं देता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सॉइल स्ट्रक्चर। बस आज यही टॉपिक हम कवर करेंगे, सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, अरेंजमेंट ऑफ individual soil particles, individual soil particles and their aggregates, and their aggregates in particular manner, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स हैं आपके, सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, तो इन सब का जो इंडिविजुअली अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। ये चेंज हो सकती है, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड बाय टिलेज। टिलेज करोगे तो ये चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ठीक है। अब हम सिर्फ टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें टाइप्स ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो टाइप्स में क्या क्या आ जाते हैं आपकी, एक आती है आपकी प्लेट। देखो प्लेट कैसी होती है, जैसी प्लेट होती है ना हॉरिजॉन्टल, अभी आपको ऊपर बताता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे होते हैं। तो प्लेट्स कैसी होती है, ऐसी होती है ना प्लेट आपकी, ऐसे, ये आपकी प्लेट होती है। तो बस ऐसे ही आपका स्ट्रक्चर है प्लेटी में, ऐसा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली है ना, ये साइड को है। So when horizontal axes are more developed, horizontal याद रख लो, horizontal axis is more developed than vertical axis, more developed than vertical axis, ठीक है। और ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देती है, ठीक है। ये ज्यादातर आपकी पाई जाती है क्ले सॉइल में,
बस इतना याद रखना, क्ले सॉइल में ज़्यादातर होती है ये। क्ले सॉइल के फीचर्स आपको बता ही दिए, ठीक है। इसके बाद ये आ गया आपकी फर्स्ट टाइप। इसके बाद आती है आपकी प्रिज्मेटिक, ठीक है। प्रिज्मेटिक में क्या है? प्रिज्मेटिक ऐसे वर्टिकल सेक्शन जब ज़्यादा डेवलप होगा, ये ठीक है, व्हेन vertical section is more developed, section is more developed, that is known as prismatic, ठीक है। ये ज़्यादातर आपका आता है, वो हमने पढ़ लिया क्ले सॉइल में, ये ज़्यादातर आपका आता है बी होराइजन में, बी होराइजन ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, और एल्कलाइन सॉइल्स में भी होता है ये हम सॉइल्स आगे पढ़ेंगे, एल्कलाइन क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, सोडिक क्या होती हैं, सेलाइन क्या होती हैं, सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कहाँ पाए जा रहे हैं? बी होराइजन में, कहाँ के? एरिड और सेमी एरिड रीजन्स और एल्कलाइन सॉइल में। तीसरा टाइप इसकी आती है आपकी ब्लॉकी, ब्लॉक्स होते हैं जो। तो ब्लॉकी में क्या होता है? व्हेन ऑल एक्सेस जो होते हैं सॉइल एग्रीगेट्स के सेम साइज के होते हैं, क्यूब लाइक, ऐसा क्यूब होता है ना, तो सारे एक्सेस सेम होते हैं ना क्यूब के। व्हेन all the axes are when all the axes of soil aggregates are of same size, that is known as blocky structure। ये भी आपका बी होराइजन में पाया जाता है, बट इन humid and subhumid regions, humid and subhumid regions, ठीक है। ये आ गया आपका ब्लॉकी। फिर हम पढ़ेंगे स्फेरॉइडल, ये आ गया आपका फोर्थ टाइप, स्फेरॉइडल। स्फेरॉइडल क्या होता है? जब सारे के सारे एक्सेस सेम साइज और लेंथ के हैं, व्हेन ऑल एक्सेस आर ऑफ सेम साइज एंड लेंथ, ठीक है। अब जब स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर में पोर्स होंगे तो दैट इज नोन एज क्रम्बी। अगर पोर्स होंगे तो क्रम्बी, अगर नॉन पोरस होएगा, पोर्स नहीं होंगे, तो दैट इज नोन एज ग्रैनुलर, मीन्स उसमें ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। ये कल्टीवेटेड सॉइल में पाया जाता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो आपका वो ग्रासलैंड में पाया जाता है, ठीक है। अगर बेस्ट सॉइल की बात करें, बेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, तो ऑब्वियसली जिसमें पोर्स होंगे वो एक बेस्ट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसमें वाटर अच्छे से स्टेन हो पाएगा, एयर अच्छे से जा पाएगी। तो पोरस वाला जो है वो अच्छा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रम्बी इज द बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ये पोरस है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया आज सॉइल साइंस के बारे में। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं और ज़्यादा टॉपिक्स ले लूँ। आई थिंक 1 घंटे की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कवर करूँगी। तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है, आप लोग इतना ही पढ़ लेंगे वही बहुत है। कोशिश करूँगी अगली 2 क्लासेस में आपकी सॉइल साइंस कंप्लीट हो जाए, और अगली 2 में नहीं होगी तो 4-5 में हो ही जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please like, share and subscribe to my channel. I am doing a hard work and I want you to do a hard work as well, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे टाइम निकाल पा रही हूँ और कैसे कैसे क्या क्या कर रही हूँ। आई नो दिस एंड दिस इज़ रियली हार्ड फॉर मी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय एंड डू हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्क आपका ज़रूर रंग लाएगा एक दिन, तो करते रहिए, पढ़ते रहिए, और इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।